uh, uh, link will be distributed to all of you, right? So good morning once again to all of you. And today, please kindly mute all of you. Uh, when I will call by name, then you can tell anything. Or if any doubt, kindly raise your questions in chat. Okay, so good morning. Today, I will give the highlights about your, digital modulations, and in entire syllabus of this subject, I will send the syllabus also on your mail ID. And this subject basically the advancement of your communication system. So first we will start from basics of digital communication. Then we will concentrate about the channel modeling. Then the Gram-Schmidt procedures for modulations technique, different type of modulation techniques. Okay. So first, since this is the second class, in first class I have uh, gone through your background, and you will also know about the some basic concept, why the communication is required, and the communications, the basic fundamental is advanced communication system is basically involved the channel modeling. And I think you already studied in the preparations of GATE, or in last year maybe about the match filter, and different type of digital motion techniques like that. Okay, so no issue. We will discuss one things. So first, my today's agenda is, there are two different types of transmissions. One is known as baseband data transmission, and second one is known as band pass data transmissions. Right. So in digital communication, basically we are looking for the two types of communications. One is known as baseband data transmissions, and second one is known as band pass data transmissions. Right. So we will start from here. Uh, before we continue this band pass and baseband transmissions, may I know? I want to know only one thing in one line statement. Why modulation is required? Right? Why modulation is required? Who will tell? Just write in the chat box. Who want to tell why modulation is required? Please tell me. Roll number 6, Murtaja Waheed. Murtaja Waheed, could you please tell me why modulation is required in communication system? Hello, Murtaja. Good morning, sir. Better tell me why modulation is required. So there are various advantages of modulation. Only one line statement. So one is to reduce height of tower. Very good. Mute yourself. IOC. Second, comment why modulation is required. To increase the strength of the signal. Strength of the signal. Okay. And other? Anyone other comment, please? Reduce the antenna height, prune the signal to transfer the signal to different place, farthest places. अच्छा, इसके लिए okay. So in last class I multiplexing. So in last class I told the first thing, if lambda is equal to c by f, and lambda is the height of antenna, and if frequency is higher, frequency is very high, then lambda is lower, right? And lambda by 2 is the height of antenna, so you can remove the you can reduce the height of antenna. Yes, right, Charit. We can improve the signal to noise ratio. Okay, done to transmit signal over larger distance, right? Okay, so so in amplitude modulation, who will follow
carrier is follow amplitude or amplitude is follow carrier? Saif Ali, roll number 14. In amplitude modulations, which one is followed? Carrier is followed amplitude or amplitude is followed carrier? Carrier follow, एकदम सही. Sir, carrier is followed by amplitude. By amplitude. Carrier is followed by amplitude or to amplitude. Yes. Carrier is followed to the signal, towards the signal. Okay, so mute. Now I am looking for the today's agenda, that is known as baseband transmissions, baseband data transmissions and band pass data transmissions. Who will differentiate between baseband signal and band pass signal? Baseband signal and band pass signal. कहाँ पे यूज करते हैं और क्या होता है दोनों में डिफरेंस? Who will tell? Write on chat. Base band and band pass is really important for any communications. Base band and band pass. What is the difference? Naida, could you please tell me? Yes, sir. Sir, in baseband transmission, the signal is encoded in its own baseband frequencies. We don't shift it to any higher frequency, but in band pass, the transmission is done after shifting it to some higher frequency range using modulation. Okay, somehow okay. Anyone? Bansika, what is the difference between band pass and baseband signal? So in band pass frequency, in baseband baseband signal, the frequency range is near to 0 in baseband. 0 नहीं बोलो, low बोलो. 0 होगा तो Low. जाएगा. And in band pass, there is a band of frequency. That band is allocated. So frequency is higher, right? Yeah. So what are the real time applications? Real time में कहाँ यूज करते हैं? वायर्ड कम्युनिकेशन में कौन सा यूज करते हैं, एंड वायरलेस में कौन सा यूज करते हैं, एंड क्यों? Yes, sir. Where baseband signal is used in wireless and wired, or band pass signal is used in baseband, wired and wireless, and why? Sir, I'm not getting it. So please repeat the question. Baseband signal and band pass signal is okay. Both two type of transmission, baseband transmission and band pass transmission. Okay, beta. Yes, So sir. baseband transmission will use in wired or wireless, and why? So baseband is used in wired. Wired, okay. Or why? So no. Sorry. Baseband will be band pass will be used in wired communication because of its high frequency. ऐसा होता है? Or like कंफ्यूज हो आप बेटा. अच्छा ये बताओ, हाई फ्रीक्वेंसी को हम डायरेक्टली वायरलेस में भेज सकते हैं? and sir, we have to modulate the frequency now to just ओके, म्यूट करो. हाँ, साइमा भट्ट, प्लीज कमेंट baseband data transmission and band pass data transmission. हेलो साइमा, नहीं आ रहा है? ओके, रोल नंबर 15. रोल नंबर 15 बेटा. Hello.
रोल नंबर 15 बेटा, आवाज आ रही है आपको? ये हाँ बेटा बोलिए, बैंड पास के लिए चैनल क्या होना चाहिए? बैंड पास के लिए चैनल कैसा होता है, एंड बेस बैंड के लिए चैनल कैसा होता है? ये भी नहीं मालूम आप लोगों को तो इज वेरी टफ. If you are not able to say about the baseband and band pass channel, so it's very tough. हाँ तो- चरित हाँ टेल मी बेटा, पढ़ा बोलो. repeat. हाँ Hello, हाँ sir. बेस, यस बेस. I guess in case of band pass, it allows a certain range of frequency. Like in case of band pass, it's like 400 to 700 megahertz. It will allow that frequency. And in case of bass band, it up to after a particular limit, it will allow all the frequencies. So the band pass will be narrow, and bass band will be the wider gap kind of thing. Mute. Any other one? Mute करो चरित. Mute. So okay. So always please, आप लोग के पास notebook पड़ा हुआ है ना? Please write down. Always remember that there is a fundamental difference between baseband and passband data transmission. लिख लो. There is a fundamental difference between baseband and passband data transmission. Is with respect to channel. Channel के रिस्पेक्ट में एक फंडामेंटल डिफरेंस है, और वो क्या है? राइट डाउन. फॉर बैंड पास द चैनल इज फ्री स्पेस. Always remember that for the band pass the channel is free space, that means wireless. And for baseband, channel is always wired like coaxial cable or fiber cable or twisted pair. So always remember that baseband data transmission is always used for wired network, and band pass channel is used for wireless channel, right? So this is the basic difference. So directly इसको ऐसे समझो, like write down second line. Whenever the channel is free space, whenever the channel is free space, we are not able to transmit the data, we are not able to transmit the digital data. लिखो, digital communication पढ़ रहे हैं हम. We are not able to send the digital data directly, right? Whenever the channel is free space, we are not able to transmit the digital data directly because the spectrum of digital data is low frequency. Because the spectrum of digital data is low frequency spectrum, right? Digital data का जो spectrum होगा वो बहुत छोटा होगा, right? So the height of antenna is required very large. जब frequency बहुत छोटा होगा तो lambda is equal to C by F. F is lower, lambda is very, very higher, right? So the baseband converted into, so first baseband is converted into band pass. So the baseband is converted into band pass or vice versa by using an analog carrier, right? So somehow नया ने बताया था कि हम कन्वर्ट करते हैं, बट आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि हम ऑलवेज रिमेंबर दैट
कि बेसबैंड सिग्नल इज यूज्ड फॉर वायर चैनल एंड बैंड पास इज यूजिंग फॉर फ्री स्पेस कम्युनिकेशन। एंड क्यों? क्योंकि डिजिटल डाटा का जो स्पेक्ट्रम होता है बहुत छोटा है, उसको डायरेक्टली हम नहीं भेज सकते, so because we have required very large height of antenna. So this is the main difference. Now write down. मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। जसप्रीत, are you able to understood this concept, baseband and band pass transmission? Yes, sir. Okay. Now write down types of baseband data transmissions. Types of baseband data transmissions. So there are two types of categorically जो हमारा बेस बैंड डेटा ट्रांसमिशन है, दो तरह का लिख लो, टू टाइप्स। पहला है पल्स एनालॉग एंड सेकेंड वन इज द पल्स डिजिटल। पल्स एनालॉग एंड सेकेंड वन इज द पल्स डिजिटल। और पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन जो है वो तीन टाइप के होते हैं। पल्स एनालॉग कौन बताएगा? पल्स एनालॉग, पल्स एनालॉग में तीन टाइप्स के कौन कौन से होते हैं बेटा? एनीवन? पल्स एनालॉग में सबसे मेन है बेटा एग्जांपल, यस, PAM, PPM, PWM, राइट। और हाउ वी कैन कैलकुलेट द PWM? साध्वी, PWM किससे निकालते हैं? पल्स विथ मॉड्यूलेशन किससे निकालते हैं? हाउ वी कैन कैलकुलेट? तो याद रखना, PAM से PWM निकालते हैं एंड PWM से ही PPM निकालते हैं। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से पल्स विथ मॉड्यूलेशन निकालते हैं। नहीं, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विथ मॉड्यूलेशन, जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा उसकी विड्थ बढ़ेगी, राइट? सो PWM डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन PAM। जैसे जैसे वो आपने देखा होगा ओपेम के वैल्यू से, कंपैरेटर से जितना वैल्यू ऊपर जाएगा तो ऊपर कट होगा और विड्थ बढ़ेगी, एंड विड्थ बढ़ेगी तो उसकी पोजीशन भी घटेगी, बढ़ेगी। सो पहले याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर दैट PWM डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन PAM एंड PPM इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन PWM, क्योंकि विड्थ के साथ ही पोजीशन भी चेंज होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पल्स एनालॉग communications, that is known as pulse amplitude, pulse width and pulse position. So pulse amplitude modulations, pulse width modulations and pulse position modulations. And pulse जो हमारा width modulation है वो किस पे डिपेंड करता है? pulse width पे डिपेंड करता है, सॉरी pulse amplitude पे डिपेंड करता है। और PPM किस पे डिपेंड करता है? PPM directly depends on pulse width modulation. So always remember this. Now second, pulse digital. Pulse digital modulation is how many types? Write down. There are 4 types जिसको हम पढ़ने वाले हैं। So पहला है PCM, pulse code modulations का पहला है। pulse digital में पहला आता है pulse code modulations। सेकेंड कौन बताओगे? pulse coordination के बाद, pulse code modulation के बाद, anyone? सेकेंड? यस, DPCM। उसको क्या बोलते हैं? DPCM का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, DPCM का फुल फॉर्म डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। उसके बाद थर्ड किस टाइप का होता है चरित्र? थर्ड टाइप डेल्टा मॉड्यूलेशंस। डेल्टा मॉड्यूलेशन किस पे डिपेंड करता है चरित्र? डेल्टा मॉड्यूलेशन, हाँ साध्वी, डेल्टा मॉड्यूलेशन किस पे डिपेंड करता है? स्टेप साइज चरित्र म्यूट कर लो। हाँ बंसिका, स्टेप साइज इज हायर जरूरत होता है या लोअर, एंड व्हाई? बंसिका अनम्यूट। हेलो सर, स्टेप साइज जो होता है वो डेल्टा मॉड्यूलेशन में लाइक कम होना चाहिए। अच्छा, स्टेप साइज कम होना चाहिए। वेरी गुड, अभी बताता हूँ मैं, मतलब कम होना चाहिए। स्टेप साइज नहीं, वेरिड होता है ऑटोमेटिकली सर, वो एरर्स होते हैं ना। जब वैरी होगा तो उसको कौन सा बोलेंगे? यस सर, जब स्टेप साइज वैरी होगा वो कौन सा मॉड्यूलेशन होगा? डेल्टा मॉड्यूलेशन होगा। अडैप्टिव। हाँ, दैट इज द फोर्थ टाइप, अडैप्टिव। डेल्टा मॉड्यूलेशन में क्या होना चाहिए? स्टेप साइज सर अडैप्टिव, डेल्टा मॉड्यूलेशन में स्टेप साइज ज्यादा होता है, उसकी वजह से हम अडैप्टिव
करते हैं। बोलते हैं हाँ। ओके, स्टेप साइज क्या होना चाहिए? हु विल टेल? चैट में लिखो जो बताना चाहते हो स्टेप साइज। लार्ज होना चाहिए साइमा, स्टेप साइज विल बी लार्ज। हाँ साइमा, क्यों होना चाहिए ज्यादा बेटा? आइडियल स्टेप साइज क्या होना चाहिए? अच्छा ये बताओ कि स्टेप साइज जो हमारा सिग्नल है और स्टेप साइज है, स्टेप साइज के कहां से गुजरेगा तो मिनिमम एरर होगा? स्टेप साइज के यदि ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, उस तरह के दो तरह के एरर होते हैं, उसको कौन सा एरर बोलते हैं? माइनस डेल्टा बाई 2 से प्लस डेल्टा बाई 2। ओके, सो प्लस माइनस डेल्टा बाई 2 होना चाहिए, माइनस भी होना चाहिए। जनरलाइज एंड स्लो एड एरर, राइट। ओके, अच्छा ये बताओ ओवरलोड एंड अंडरलोड को कैसे अवॉइड करेंगे? सो याद रखना स्टेप साइज यह है आपका, और यदि ऊपर से चला जाए तो उसको बोलते हैं ओवरलोड, नीचे से चला जाए तो अंडरलोड एरर, राइट। ओके, गैलन वाइज इज डिफरेंट थिंग बेटा, बार बार गैलन वाइज मत लिखो। ओके, सो यदि नीचे से चला जाए तो अंडरलोड एंड ऊपर चला जाए तो ओवरलोड, राइट। गैलन वाइज इसको नहीं बोलते हैं, बार बार जो लिख रहे हो गैलन वाइज। गैलन वाइज डिफरेंट थिंग, बताऊंगा। ओके, so pulse digital modulation is 4 types: PCM, DPCM, delta modulation and adaptive delta modulation, right? And ideal step size is delta by 2। यदि एग्जैक्टली देखो ध्यान से कि कोई स्टेज पे चढ़ रहे हो आप, राइट, कोई स्टेज पे किसी छत पे चढ़ना है आपको, रूप पे जाना है, एंड यू आर फॉलोड द स्टेयर्स। सो स्टेयर्स के यदि बहुत किनारे आ जाओगे और बहुत राइट साइड आ जाओगे, बहुत लेफ्ट साइड आ जाओगे तो प्रॉब्लम है, गिरने का चांसेस है। बट यदि मिडिल पे तुम चलते जाओगे, दैट इज द बेस्ट मेथड, और जहां पे आप सबसे ज्यादा सेफ हैं। सो डेल्टा बाई 2 इज द आइडियल साइज टू मिनिमाइज द एरर, इसलिए डेल्टा बाई 2 लेते हैं, राइट। यदि कोने में चले जाओगे या बहुत इधर जाओगे तो एक में ओवरलोड हो जाएगा, एक में अंडरलोड हो जाएगा। सो हमेशा हम क्या करते हैं, हमेशा याद रखना स्टेप साइज जो लेते हैं वो हम लेते हैं डेल्टा बाई 2 और 0 एरर। ओके, सो नाउ the second question is the types of data transmission is known as band pass data transmission. So write down band pass data transmissions. So band pass data transmission जो बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें, एंड जो कभी किसी आपको प्रूफ नहीं बताते हैं, कहीं भी आप पढ़ो, चाहे कोई भी कोचिंग ज्वाइन करोगे तो ये प्रूफ नहीं बताते हैं कि मॉड्यूलेशन स्कीम कैसे आया, क्यों चाहिए, वाई फाइनाइट एनर्जी को हम फाइनाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, and where the symbols will be located so that we can apply the modulation scheme। तो modulation scheme के बारे में बाद में बताऊंगा आपको, थोड़ा सा पहले आप लिख लीजिए बैंड पास डेटा ट्रांसमिशन। सो बैंड पास डेटा ट्रांसमिशन कितने तरीके होते हैं? तो राइट डाउन, बैंड पास डेटा ट्रांसमिशन इज 2 टाइप्स। शायद आपको मालूम है, नहीं है, पता है नहीं, नसित बताइए, दो टाइप के बैंड पास डेटा ट्रांसमिशन कौन कौन से होते हैं? और नेक्स्ट क्लास से मैं लिखूंगा, राइट, वी विल हैव द नाउ पैड एंड यू कैन एबल टू सी, राइट। अभी तो हम इंटरेक्शंस कर रहे हैं बिकॉज दिस इज ओनली सेकंड क्लास, सो वी आर इंटरेक्टिंग टू ईच अदर। सो बैंड पास डेटा ट्रांसमिशन 2 तरह के होते हैं, राइट। सो नसीद बताइए कौन कौन से टाइप होते हैं बेटा? नसीद आवाज नहीं आ रही मेरी? ओके, शेफाली कॉल, रोल नंबर 14। शेफाली आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी सर, आवाज आ रही है। हाँ, ओके, तो ये नहीं है मैम, शायद मैम सीधे ज्वाइन करके निकल गई हैं शायद। हाँ जी सर, आवाज आ रही है। नहीं, आपकी तो आ रही है, मैं जिससे पूछ रहा था क्वेश्चन मैम। शेफाली, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ शेफाली बोलिए। बैंड पास डाटा ट्रांसमिशन में सर पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल होता है और लो पास चैनल
नहीं नहीं बेटा, ये अभी तो मैंने बताया था आपको, पल्स डिजिटल में आता है ना जो आप बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ बैंड पास डिजिटल ट्रांसमिशन, बैंड पास जो हम वायरलेस में यूज करते हैं बेसिकली। बैंड पास डिजिटल ट्रांसमिशन के टाइप सर। हाँ, उसमें हम यूज करते हैं बेटा एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग, बाइनरी शिफ्टिंग किंग, बीपीएसके, है ना, एफएसके, हाँ जी सर। राइट, पीएसके। यदि देखोगे तो ऐसा देखेंगे तो एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज, 3 टाइप के फेज होते हैं बेटा। एम्पलीट्यूड होता है, फेज हो सकता है, और या फ्रीक्वेंसी हो सकती है ना। 3 तरह के मॉड्यूलेशन होते हैं। और इसमें क्या करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी को में हाई फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं बेटा, कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो उससे हमारा क्या होता है, हमारा जो मेन एम था कि वायरलेस कम्युनिकेशन करना, तो उसके लिए हमें पीसीएम, डीपीसीएम, डेल्टा मॉड्यूलेशन काम नहीं आएगा, राइट। दैट इज द कौन सा कम्युनिकेशन है वो, बेस बैंड। तो हमें बैंड पास सिग्नल यूज करनी पड़ेगी, किसके लिए, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। और वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए जो बैंड पास सिग्नल है दैट इज एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग किंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग किंग एंड फेज शिफ्टिंग किंग। और इसके भी अलग तरीके हैं, दैट इज द, उसको बोलते हैं एम एरे फेनोमेना। एम एरे फेनोमेना मतलब QPS के, 8 QPS के, 16 QPS के, 32 QPS के, 64 QPS के, राइट। तो QPS के और BPS के इसमें क्या डिफरेंस है, मैं अभी पूछूंगा आप लोग से, बताऊंगा भी कि फॉर वायरलेस कम्युनिकेशंस वी आर ऑलवेज use band pass signal, band pass. On band pass data transmission is amplitude shifting king, frequency shifting king and phase shifting king, right। उसमें हम ये सारे shifting king में का ये तो है एक एक करके बिट, लेकिन मोर देन 1 बिट भेजना पड़ेगा तो मुझे एरे यूज करना पड़ेगा, राइट। सो यदि एक सिंबल में मोर देन 1 बिट भेजना है, सो उस कंडीशंस में हमारा जो टीबी है, टाइम पीरियड ऑफ बिट्स है, वो टाइम पीरियड ऑफ सिंबल बदल जाता है। टीबी जो है वो टीएस में बदल जाता है। और टीबी में जहां पे हम 0 1 भेज सकते थे, यहाँ पे 0 0 1 0 0 1 1 1, मतलब 2 बिट भेज सकते हैं। 2 बिट भेज रहे हैं, 4 हो गया तो QPS के हो गया। और यूज करना चाहें तो हम वैसा यूज कर सकते हैं, 4 यूज कर सकते हैं, 16 यूज कर सकते हैं, 32 यूज कर सकते हैं, 64 यूज कर सकते हैं, 128 यूज कर सकते हैं, 256 यूज कर सकते हैं, 5112 यूज कर सकते हैं। उसका डबल करेंगे तो 1024 कर सकते हैं, 1024 का डबल करेंगे तो 2048 बिट दे सकते हैं, उससे भी ज्यादा बिट भेज सकते हैं। और इस तरह के जो रिलेशंस होते हैं उसको बोलते हैं एम एरे रिलेशंस, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर, आज का जो पहला एजेंडा था होपफुली सबको समझ में आ गया हो। There are 2 types of communications. One is known as baseband signal communication, baseband transmission, and second one is the band pass transmissions. So baseband signal is you always prefer for wired communications, and band pass communication we are always prefer for wireless communications. So यदि हम मुझे wired communications में यूज करना होगा तो हम PAM, PWM, PPM यूज करेंगे, या PCM, DPCM, डेल्टा मॉड्यूलेशन, एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन ये यूज करेंगे। यदि मुझे वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करनी होगी तो हम शिफ्ट किंग यूज करेंगे, एम्पलीट्यूड शिफ्ट हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकता है, फेज हो सकता है। और यदि मुझे नंबर ऑफ बिट्स 1 से ज्यादा यूज करने होंगे तो मुझे एम एरे फिनोमेना यूज करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें QPS के यूज कर सकते हैं, 4 QPS के यूज कर सकते हैं, 8 QPS के कर सकते हैं, 30 16 कर सकते हैं, 64 कर सकते हैं, 128 कर सकते हैं, जो मैंने बताया। और ये नंबर ऑफ बिट्स बढ़ेगा, ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स एक टाइम में आप भेज सकते हैं एक ही सिंबल में, तो उसके लिए क्या होता है, डेटा रेट बढ़ जाता है। अब कैसे बढ़ता है वो हम सारा प्रूफ करेंगे, 1 by 1 करके हम प्रूफ करते जाएंगे, सो डोंट वरी, ओके। तो होपफुली ये कंसेप्ट आपको पूरा समझ में आया हो। तो मैं एक लाइव एग्जांपल बताता हूं कि कैसे बैंड पास सिग्नल का कैसे यूज होता है। और ये देखना बहुत ही अच्छा सिस्टम है ये। और मुझे लगता है प्रैक्टिकल थ्योरी तो हो गया, आप कैसे याद रखेंगे, कैसे, ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो ध्यान से देखना क्या होता है। यदि अपने नोटबुक ओपन कर लो और ध्यान से सुनो।
आप सब कोई मैक्सिमम बंदे वाईफाई यूज सॉरी जीएसएम मॉड्यूल यूज कर रहे होगे अपने मोबाइल में। तो जीएसएम मॉड्यूल मतलब मोबाइल से कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसमें सिंपल क्या है कंडीशंस कि एक बेस स्टेशन है एंड एक वन बेस स्टेशन विल कम्युनिकेटेड थ्रू अपलिंक एंड डाउनलिंक ट्रांसमिशंस टू योर ट्रांसमिट रिसीव एंटीना जो आपके मोबाइल में लगा हुआ है उससे कम्युनिकेट कर रहा है एंड डिकोडर इनकोडर होने के बाद एनएनए लगने के बाद यू आर एबल टू रिसीव द सिग्नल। बट एज फार द कम्युनिकेशन बैंड पास कम्युनिकेशन के लिए ध्यान से सुनना। तो क्या होता है, लेट अस अज्यूम दैट कि मुझे ट्राई किया कि मुझे बीपीएसके यूज करना चाहिए कि क्यूपीएसके यूज करना चाहिए कि क्वैम यूज करना चाहिए। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट? सो हाउ दिस मॉड्यूलेशन इज डायरेक्टली ट्रांसमिटेड बाय द बेस स्टेशन। कैसे होता है? सो मैं एक बंदे से किसी से पूछूंगा और वो बताता जाएगा। सबा मोहिद्दीन, रोल नंबर 10, रोल नंबर 10, रोल नंबर 10 बेटा। आयुषी, आयुषी अनम्यूट करो। Yes, sir. हाँ, आवाज थोड़ा जोर बोलना। हाउ फार द बेस स्टेशन फ्रॉम योर होम? हाउ फार द बेस स्टेशन हैज इंस्टॉल्ड फ्रॉम योर होम लोकेशन? जहां पे आप अभी फोन यूज कर रहे हो वहां से बेस स्टेशन की दूरी कितनी दूरी है? बेस स्टेशन समझते हो? Yes, sir. बेस स्टेशन क्या होता है? सर जहाँ पे मतलब जो हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं किसी को कॉल कर रही हूँ तो जो मेरी वॉइस जहाँ जाएगी पहले बीएससी पे जाएगी, बेस स्टेशन पे जाएगी। हाँ, बेस स्टेशन को मोबाइल टावर बोलते हैं बेटा, है ना? मोबाइल Yes, टावर। sir. Yes, sir. तो कितना दूरी पे है? सर पता नहीं सर मेरे को इतना या आपको पता नहीं है? नहीं सर। अच्छा, कौन सा सिम यूज करती हो? सर जियो या एयरटेल? जियो। जियो। कभी आपने गूगल पे सर्च करने का ट्राई नहीं किया? वेयर इज द लोकेशंस ऑफ द बेस स्टेशन? नहीं सर, कभी नहीं किया। नहीं यूज किया। उसके ऐप्स में जाओ, खाली व्हाट्सएप और ये सब से सीखोगे थोड़ी कुछ। मेरे पास एयरटेल है तो मैं तो तुरंत सर्च कर सकता हूँ, और जियो में भी होगा, 100% होगा। तो जब आप उसमें जाओगे नेटवर्क डिप्लॉयमेंट में तो आपको दिखेगा कि कहाँ पे टावर गड़ा हुआ है, राइट? जैसे हमारे यहाँ तो अपने कैंपस में ही दो लगा हुआ है, एक गेट नंबर 1 पे लगा हुआ है, राइट, और एक गेट नंबर 2 की तरफ लगा हुआ है। सो गेट नंबर 1 पे जैसे मैं लेट अस अज्यूम दैट, ध्यान से सुनना आयुषी, लेट अस अज्यूम दैट कि टावर मेरे 1 किलोमीटर के पास है एक, राइट, और आयुषी का 1 किलोमीटर पे है, शेफाली का 2 किलोमीटर पे है और वंशिका का 3 किलोमीटर पे। तो स्क्रीन पे भी ये तीनों साथ में दिख रहे हैं। सो आयुषी, वंशिका एंड शेफाली, प्लीज राइट डाउन। एक बेस स्टेशन बनाओ, एक बेस स्टेशन बनाओ, सब कोई बनाओ भाई, एक बेस स्टेशन बनाओ और एक मोबाइल का अपना अपना डिस्टेंस रखो। 3 डिस्टेंस ले लो। 1 मोबाइल डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर, सेकेंड मोबाइल डिस्टेंस इज 2 किलोमीटर एंड थर्ड मोबाइल इज डिस्टेंस इज 3 किलोमीटर। कर लिया आयुषी? कर लिया? Yes sir, 1 Okay. kilometer distance. Okay, 1 kilometer, 2 kilometer and 3 kilometer, right? Now साध्वी अनम्यूट करो, साध्वी अनम्यूट करो प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, नाउ base stations wants to send the different type of modulations to IOC, to Bansika and Cephali. IOC at located 1 kilometer, Bansika at 2 kilometer and Cephali at 3 kilometer. तो बेस स्टेशन कौन सा मॉड्यूलेशन स्कीम लगाएगा और क्यों लगाएगा? Understood the questions? Yes, sir. कौन सा मॉड्यूलेशन स्कीम किसको लगेगा एंड व्हाई?
एनीवन म्यूट करो साथ भी। जसप्रीत, जसप्रीत अनम्यूट। हाँ, कमेंट। सबसे पहले तो आप लोग अपना नेटवर्क ठीक करें। हाँ बताओ जसप्रीत। कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में। आइडिया नहीं है, ठीक है, म्यूट कर लो। तुहा, तुहा मोहम्मद। यस सर। हाँ, हमेशा यूज करते हो फोन? कभी सोचा है यस कि कौन सा मॉड्यूलेशन स्कीम मुझे लग रहा है मेरे मोबाइल में एज अ कम्युनिकेशन इंजीनियर? हैव यू थॉट अबाउट दिस? सर आई थिंक एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, ये कीइंग यूज होगी। ओके सर ठीक है, म्यूट। रोल नंबर 15, रोल नंबर 15 फरहा। Yes, sir. Which modulation and why? BPSK, QPSK and QAM, तीनों में BPSK, QPSK and QAM कौन सा मॉड्यूलेशन आयुषी को दोगी, कौन सा वंशिका को दोगी, कौन सा सिफाली को दोगी, एंड क्यों? कॉपी पर नोट कर रहे हो ना? लोकेशन पढ़ा? Yes. बताइए। और ये सब शेयर भी करूंगा मैं वीडियो बना के, डोंट वरी। नो आइडिया? नो आइडिया तो चलो आगे चलो, टाइम में वेस्ट करो, आगे चलते हैं हम। नायरा? No, sir. I म्यूट। don't know. ओके, मुर्तजा, मुर्तजा। I don't know, sir. अच्छा, कभी सोचा है कि मेरा मोबाइल कैसे काम कर रहा होगा ये? मुर्तजा अनम्यूट करो। मुर्तजा अनम्यूट प्लीज। कभी सोचा है कि आपको डाटा रेट ज्यादा मिल रहा है, कभी कम मिल रहा है? कौन कौन सोचते हो? किसी ने अभी तक सोचा हो कभी लाइफ में कि सर हाँ। मुझे इसका आंसर मतलब एक बार गेस करना है सर। हाँ, सर बताओ। क्योंकि सर 3 डिस्टेंस है हमारे पास टावर से। यस, एक है 1 किलोमीटर, एक है 2 किलोमीटर की दूरी और तीसरा है 3 किलोमीटर की दूरी। वेरी गुड। तो जो एक फॉर्मूला होता है रेडिएटेड पावर अपॉन 4πr², तो वो जब रेशियो हमारा अगर ज्यादा है और उस फैक्टर से हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला है कि 1 किलोमीटर वाला, तो उसके एंटीना का पावर सर इफेक्टिव पावर अपॉन 4πr²। आर हो गया। यस, अपर्चर वाला। यस, हाँ। तो सर जो 1 किलोमीटर वाला है उसमें अगर हम बीपीएस के देंगे तो हो जाएगा, 2 किलोमीटर वाले में क्यूपीएस के और 3 किलोमीटर वाले में क्यूएम। आई थिंक तो चरित ने गुड, तो चरित ने अपना जो सोचा वो अपने प्रूफ भी देने का ट्राई किया। ओके, नाउ चरित एक काम करो, एक पेज है आपके पास, नोटबुक? यस सर। सबके पास नोटबुक है, नोटबुक निकालो और बीपीएस को प्लॉट करो, यूपीएस को प्लॉट करो और क्वैम को प्लॉट करो। क्वैम में तुम 8 पीएस के ले लो, 8 क्यूपीएस के ले लो। ड्रॉ करो तीनों आदमी सारे, प्लीज ड्रॉ द लोकेशंस, कॉन्स्टलेशन डायग्राम। कॉन्स्टलेशन डायग्राम चलिए समझते हो? मैं पढ़ाऊंगा बट अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट आना चाहिए, सो दैट यू कैन यू आर ऑल आर इन एमटेक, प्रैक्टिकली समझ पाओगे तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। कॉन्स्टलेशन डायग्राम किसने किसने पढ़ा है? सर पढ़ा है लेकिन सर एक बार चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। बनाना होता है 0 0 0 1 1 0 1। एक डायग्राम लो, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करो। ड्रॉ करो नीचे तक, y माइनस वाई, x प्लस x माइनस x, और 0 पे ओरिजिन दो सब कोई, प्लीज ड्रॉ। पढ़ाऊंगा डिटेल से बट आज की क्लास में मुझे लगा कि कुछ प्रैक्टिकली आपको सोचना चाहिए। कभी भी आप हर कोई मोबाइल यूज करते हैं बट वी डोंट नो कि हम मतलब क्या हो रहा है, क्या सिस्टम है बैकग्राउंड में। तो एक खींच लिया चलिए, मैं तुमको कंसिडर कर रहा हूँ, बाकी नहीं अभी तुमको नहीं करना है मुझे। आयुषी यस सर। प्लॉट किया?
प्लॉट किया बिटू? कर रही हूँ सर, कर रही हूँ। हाँ करो, जल्दी करो। एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस खींचना है, इतना टाइम थोड़ी लगेगा मैम। अब 2 पॉइंट लो, एक एक्स एक्सिस पॉजिटिव पे, यदि 1 है तो दूसरे तरफ एक एक एक्स एक्सिस पे ए पॉइंट लो, तो दूसरी तरफ -a पॉइंट लो। एक्स पॉजिटिव तरफ ए पॉइंट, एक पॉइंट लो डॉट, और एक तरफ -x वाला जो है वहां पे ए डैश ले लो। तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना होगा चरित? सर किस में? कितने कितने डिग्री का डिफरेंस होगा जसप्रीत? सर किस में सर? दोनों 180। एक, हाँ 180 का डिफरेंस होगा, राइट। एक एक्स की तरफ है, एक्स डैश की तरफ है, एक एक्स की तरफ है, 180 डिग्री, सही है। सो ना 180 डिग्री में एक है 1 और दूसरी तरफ मैं उसका अपोजिट ले रहा हूं तो 0, तो 1 0 मैंने ट्रांसमिट किया, राइट। तो इसको बोलते हैं बीपीएस के। दो सिंबल्स, 2 बिट्स को मैं भेज रहा हूं, 2 बिट्स को बीपीएसके में 2 बिट्स ट्रांसमिटेड एट द सेम टाइम, 1 and 0। नाउ दैट मीन 2 बिट्स में भेज रहा हूं एक साथ, तो इसको क्या बोलेंगे? बिट्स नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिंबल, राइट। एक सिंबल में मैं 2 बिट भेज रहा हूं, ओके, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नाउ अब मुझे क्यूपीएसके भेजना है। क्यूपीएसके में मुझे 4 बिट भेजना है एक बार, भेजो जल्दी से प्लीज, 4 बिट एक साथ भेजो। सर प्लीज एक बार दोबारा रिपीट करोगे, मेरा नेट कनेक्शन चला गया था। अच्छा, तो आपको ये बीपीएस के कैसे प्लॉट करते हैं बेटा? एक तरफ 1, एक तरफ 0, मानते हो इस बात को? और एक एक है तो हमारा पॉजिटिव साइड, और एक है, एक एक क्या होगा बेटा? नेगेटिव साइड होगा, होगा या नहीं होगा? यस सर। हाँ, एक को हम बाद में प्रूफ करेंगे। एक को रूट ईबी बोलते हैं, तो दूसरी तरफ -√EB। छोड़ो अभी, एक 0 है, एक 1 है, लिख लो। एक एक्स एक्सिस के तरफ पॉजिटिव साइड एक डॉट रखो 0, और नेगेटिव साइड -1, सॉरी 0 है तो 1, आप रिवर्स भी ले सकते हो, 1 0 भी ले सकते हो। ये हो गया 2 बिट ट्रांसमिटेड एट द सेम टाइम, इसलिए इसको बोलते हैं बीपीएसके। डोंट वरी, मैं प्रूफ करूंगा। अभी मैं कुछ दूसरा चीज बताना चाह रहा हूं, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। क्यूपीएसके नाम ही है, क्यूपीएसके क्वाड्रेचर फेज। तो कितने बिट भेजेंगे आयुषी एक साथ? क्वाड्रेचर मतलब क्या होता है? 4 बिट। 4 बिट भेजिए, 4 बिट को। तो 4 बिट कितने डिग्री एंगल से सब चेंज हो जाएगा? 90 डिग्री सर। 90, हाँ, यस, वेरी गुड सबीना, फरार गुड, नायरा गुड, 90 डिग्री। अब 4 बिट कैसे रखो, देखो ध्यान से, मेरा वो दिख रहा है ना कैमरा? देखो, एक एक्सिस बनाओ, एक यहाँ पे उसके जस्ट नीचे, एक यहाँ पे, एक उसके जस्ट नीचे। तो 0 मान लो 0 0 0 0 लेते हो, तो 0 0 0 1 1 1 1 1 0, क्योंकि अपोजिट में 180 का डिफरेंस होना चाहिए। वो सब प्रूफ करूंगा बाद में। और ले लो 4 बिट पोजीशन ले लो, 4 बिट पोजीशन ले लो बेटा, 4 बिट पोजीशन। ओके, अब 4 बिट के बाद 8 पीएस 8 क्यूपीएस के ले लो बेटा। 4 बिट कैसे लिया, ध्यान से देखना, 1 1, तो इसके जस्ट नीचे की तरफ ऐसे 180 डिग्री 0 0, तो 1 1, इस तरफ लोगे 0 1 0 0 और 1 0, ऐसे लेना। मैं भी प्लॉट कर देता हूँ ना, जैसे कि आपको थोड़ा समझ में आए। अब 8 बिट ले लो बेटा जल्दी से। 8 बिट ले लो जल्दी।
8 बिट ले लिया सबने? यस, गुड। और दोनों पॉइंट के बीच की दूरी को बोलते हैं D12, D21, जो भी लिखना है ये कॉन्स्टलेशन डायग्राम में डिस्टेंस। अब ध्यान से देखना, मैं एक एक करके दिखाता जाता हूं। अब ये नहीं, पहले तुम लोग से पूछ लेता हूं मैं, बीपीएस के, क्यूपीएस के एंड 8 क्यूपीएस के में दो पॉइंट के बीच, राइट, 2 बिट्स के बीच किसमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस है और किसमें सबसे कम डिस्टेंस है? फरहा खान, मोर इन बीपीएस के। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। तो देखो ध्यान से, मेरे कैमरा में देखो, ये इसमें डिस्टेंस जो है बीपीएस में सबसे ज्यादा, उससे कम यूपीएस के में, और 8 पीएस के में और कम, बहुत कम। और जैसे जैसे मॉड्यूलेशन स्कीम बढ़ाते जाएंगे 2 बिट्स के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा? कम होता जाएगा। यस, कम होता जाएगा। यस, तो जैसे जैसे मॉड्यूलेशन स्कीम इज इंक्रीजेज, डिस्टेंस बिटवीन 2 बिट्स इज डिक्रीजेज। तो सबसे ज्यादा नॉइज का इंपैक्ट सबसे ज्यादा किस में होगा? वंशिका, जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा। क्या बेटा? जसप्रीत सर 2 बिट्स वाले में ज्यादा नॉइस होगा। आपका नेटवर्क म्यूट कर दो, आवाज नहीं आ रही आपकी। वंशिका बताओ, सबसे कम डिस्टेंस किसमें? 2 बिट्स में। वंशिका नहीं हो ऑनलाइन? यस सर। हाँ, सबसे कम डिस्टेंस किस बिट में? बीपीएस, सॉरी, मॉड्यूलेशन में। बीपीएस के, हाँ, बीपीएस के, बीपीएस के में सबसे कम डिस्टेंस। सबसे ज्यादा डिस्टेंस, हाँ, सबसे ज्यादा डिस्टेंस एंड मोर नॉइज। ओके, सबसे ज्यादा डिस्टेंस और इंपैक्ट ऑफ नॉइज सबसे कम किसमें? तो सबसे कम इसकी एक बंदे बोलो बेटा, इनमें वंशिका म्यूट करो। जसप्रीत आप बताओ। एक इसमें डिफरेंस कम है। जस्ट सबसे पहले जसप्रीत आप अपना इंटरनेट का कनेक्शन सही कीजिए, है ना? हाँ, अब बताओ जसप्रीत फिर से, सबसे ज्यादा इंपैक्ट इन नॉइज, इंपैक्ट सबसे ज्यादा मोर इन बीपीएस के, जिसमें डिस्टेंस ज्यादा होगा। नहीं, म्यूट करो, गलत गलत। हु विल टेल? सबसे ज्यादा नॉइज का इंपैक्ट सबसे ज्यादा किसमें होगा और क्यों? सर, जो 8 क्यूपीएस के था उसमें सबसे ज्यादा नॉइज का इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो जो डिस्टेंस है बहुत, दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस कम है कि उसमें नॉइज थोड़ा भी आ जाएगा तो दोनों को बर्बाद कर देगा, चेंज कर देगा। यस सर, उसकी नेचर को चेंज कर देगा। और बीपीएस के में इतना डिस्टेंस है, यूपीएस के में इतना है, एनएपीएस के में इतना है। तो बीपीएस के में ज्यादा डिस्टेंस है तो नॉइज आएगा भी, तो उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि सिग्नल का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि नॉइज आओ भाई कोई बात नहीं, आओ जाओ आओ जाओ। क्यूपीएस के में थोड़ा करेगा, बट 8पीएस के में बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा। ओके, सो नहीं हाँ बेटा, ये रट्टाफिकेशन नहीं कि क्यूपीएस के पुअर नॉइज इम्यूनिटी, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके कारण नॉइज इम्यूनिटी कम होती है उसकी, जो भी पढ़ा रहा हूँ इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ। ये तो पहले ही रट्टा मार के आएंगे तो फिर कहाँ कुछ पता चलेगा। जिंदगी भर में याद रखना, इफ द बीट्स डिस्टेंस इज लार्जर, इम्पैक्ट ऑफ नॉइज इज लोअर, बिकॉज इतना बड़ा है सिग्नल स्ट्रेंथ, राइट, इतना ज्यादा सिग्नल स्ट्रेंथ है, सिग्नल इतना ज्यादा है, नॉइज इतना ही। अच्छा ये बताओ, नॉइज तो सेम रहेगा ना? हाँ, रिपीट कर रहा हूं ध्यान से। सो इन टूडेज स्टडी वी हैव कंक्लूडेड दैट in BPSK distance between 2 points, 2 bits is higher, that is signal strength is higher, noise is constant। यहाँ पे ये मान लो कि noise is constant in all these case study, BPSK, QPSK and 8 QPSK, right? या QAM और भी आगे तक जाते जाएंगे उसके लिए भी। तो आपको क्या करना पड़ेगा?
क्या करना पड़ेगा बेटू? सबसे पहला काम करना है कि बीपीएसके में डिस्टेंस ज्यादा, नॉइज उतना ही, तो बीपीएसके बेटर। क्यूपीएसके में डिस्टेंस कम, नॉइज उतना ही, तो इम्पैक्ट ज्यादा। 8पीएसके में नॉइज वही सेम बट डिस्टेंस इज कम, तो दोनों को डिस्टरबेंस ज्यादा करेगा। सो किसने बोला था रिपीट करने के लिए? फरा प्लीज अंडरस्टूड नाउ? फरा, यस फरा, नहीं अनम्यूट कीजिए, अब बताइए, कंक्लूड कीजिए। तो मुझे 3 बंदे थे, शेफाली, आयुषी और वंशिका। तो किसको कौन सा मॉडल स्कीम लगे मोबाइल देगा? प्रैक्टिकल केस स्टडी से जल्दी बोलो बेटा, क्योंकि ये नहीं तो 5 मिनट खत्म हो जाएगा, ये लेक्चर शेड्यूल है। जल्दी बताइए। कहां गई यार फरा? हेलो, ओके, नाउ हु विल कंक्लूड? अच्छे से कंक्लूड कौन करेगा? एनीवन वांट टू कंक्लूड प्लीज? क्या ना, यहाँ सादी बोलो। सर आपने ये बताया कि जो बीपीएस के है उसमें जो हमारे बिट्स हैं उनमें डिस्टेंस ज्यादा है। अगर बिट्स में डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब जो सिग्नल में इंटरफेरेंस होगा वो मिनिमम होगा। सिग्नल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इंटरफेरेंस कम होगा। यस राइट। सर जो इंफॉर्मेशन की क्वालिटी मिलेगी वो सबसे अच्छी होगी। ऐसे जब हम 4 QPSK में आएंगे तो उसमें 4 बिट्स होंगी, तो मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव बिट्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। अगर 2 बिट्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है तो मतलब जो उसमें नॉइस है वो इंक्रीज होगा। तो जो सिग्नल है उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो मिक्स होने का, इंटरफेरेंस होने का चांस ज्यादा होगा देन QPS। ऐसे ही जब हम 8 बिट PSK में आएंगे तो जो डिस्टेंस है वो और डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज हो रहा है तो मतलब जो हमारी जैसे हम अलियासिंग बोलते हैं, तो मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी लॉस्ट होने का चांस होता है। और अगर जो कम्युनिकेशन है इंफॉर्मेशन इज एवरीथिंग, अगर हमारे सिग्नल में थोड़ा भी नॉइस है तो हम अपने सिग्नल को रिकवर करना डिफिकल्ट होगा। तो मतलब जो हमारे right, so distance is decreases, interference of the noise is increases, quality will be decreases. So अब बताइए कंक्लूड। हाँ म्यूट कर लो लास्ट में। आयुषी, बंसिका एंड शेफाली, किसको क्या मिलेगा? शेफाली आप कितने किलोमीटर पे थे बेटा? सर आयुषी 1 किलोमीटर उनको BPSK मिलेगा, मैं 2 किलोमीटर उसमें मेरे को QPSK मिलेगा, और वंशिका 3 किलोमीटर उसमें 8PSK मिलेगा। सब बेकार हो गया ना, फिर मेरा पढ़ाना बेकार हो गया। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कम होता है कि ज्यादा होता है? डिस्टेंस कम होता है। 1 किलोमीटर इज लेसर डिस्टेंस, तो क्वालिटी सबसे अच्छा किसको देंगे हम? 1 किलोमीटर। आराम से 1 मिनट, नहीं इसको कंक्लूड करने दो, नहीं तो जसप्रीत नहीं शेफाली को बोलने दो, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा मेरा पढ़ाना। हाँ शेफाली फिर से बोलो बेटा यार। सर BPSK में आपने जैसे बताया डिस्टेंस ज्यादा होगा। डिस्टेंस का 2 बिट का क्वालिटी सबसे अच्छी, 180 डिग्री का कम डिस्टेंस होगा। हाँ तो नहीं बेटा, बिट का 10 का डिफरेंस मतलब सिग्नल स्ट्रेंथ सबसे अच्छा BPSK में, तो उसको किसको देंगे? सबसे अच्छा होगा 1 किलोमीटर में आयुषी को। अच्छा, जब सबसे अच्छा होगा हम उसको नजदीक वाले को दे देंगे, तो दूर वाले को कैसे स्कीम में मिलेगा? 8PSK में बहुत खराब रहेगा सिग्नल स्ट्रेंथ, तो दूर वाले को भेजेंगे तो बेचारा कोई रिसीव ही नहीं होगा। अच्छा हाँ मोहद्दीन, हाँ बोलिए बेटा। नहीं 1 मिनट सब म्यूट करो, सबा बोलेगा। सबा प्लीज अनम्यूट एंड बोलो बेटा। ओह चरित्र बोलो। सर 3 किलोमीटर वाले को BPSK मिलेगा। हेलो सर।
2 हेलो किलोमीटर सर। वाले पे हेलो सर। चलिए सभा बोलो। सर जो लास्ट जो हमने ज्यादा डिस्टेंस वाले पे दिया 3 किलोमीटर वाले पे दिया, हम उसको बीपीएस के देंगे क्योंकि उसमें नॉइज इंटरफेरेंस काफी कम है, तो उसको हमें वॉइस क्वालिटी ज्यादा देनी है कंपेयर टू जो हमारे 2 सिग्नल्स नजदीक है, हम उनको बाकी दे सकते हैं क्योंकि उनमें डिस्टेंस ज्यादा है सर। यस ओके सर, तो थैंक यू। अच्छा, और 2 किलोमीटर वाले को क्या देंगे, कौन सा? सर हम उसको देंगे आई गेस QPS के। सर नो और सर 8, यस सर, जो सर पहला वाला है हम उसको 8 PS के देंगे, 8 वाला बिट्स वाला। सर जो लास्ट वाला है सर, लास्ट वाले को BPS के देंगे क्योंकि उसमें डिस्टेंस बिट्स में ज्यादा है तो नॉइज इंटरफेरेंस भी कम है और दूर वाले को काफी अच्छे से सुनाई देगी बात। सुनो ना, जिस सिग्नल का स्ट्रेंथ कम होगा वो तो Yes, कम sir. दूर जाएगा। यस सर, और यस कम सर। दूर वाला कौन सा 8 PS के है, उसको कम दूर बजाना है। और जो मिडिल वाला था QPS के, वो 2 मतलब थोड़ा जो पहले वाले से खराब है लेकिन दूसरे तीसरे वाले से अच्छा है लेकिन दूसरे वाले से खराब है, तो जो हमारा मिडिल वाला है उसको QPS के देंगे। और जो सबसे दूर है, जिसका सिग्नलेशन सबसे बहुत दूर जाना है, उसको बहुत सारे एटोनेशन का सामना करना है, इसलिए हम उसको BPS के देंगे। राइट, तो हमेशा याद रखना, जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस वाला है उसको हम सबसे अच्छा क्वालिटी देते हैं, जो मिडिल में है उसको मीडियम क्वालिटी देते हैं, जो नजदीक में होता है उसको सबसे खराब देते हैं। इसलिए ऑब्जर्व करना, जब आपके मोबाइल में सबसे अच्छा टावर होता है उस समय हम मैक्सिमम मॉड्यूलेशन यूज करते हैं। मैक्सिमम होता है 8 QPS के, 16 QPS के, 13 QPS के, 64 QPS के। इससे क्या होगा, इसलिए नजदीक में जब टावर बहुत अच्छा हो ना तो आपको डेटा रेट ज्यादा अच्छा मिलता है, लेकिन जब बहुत दूर होते हैं तो PPS के मिलेगा तो डेटा रेट आपका कम होता है, लेकिन आप एक्सेस कर पाते हैं, इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं, लेकिन BPS के होने के कारण आपका डेटा रेट कम होता है। किसको समझ नहीं आया, प्लीज रेज द हैंड, बिकॉज दिस इज रियली क्रूशियल, अदरवाइज मेरे को समझ में आएगा। ये बंसिका प्लीज कमेंट, कंक्लूड करो क्लास को। Yes, sir. प्लीज कंक्लूड। So, in conclusion, the thing is that, more is the distance, we will get less data rate, and we will give it less bit frequency. We will give it the BPS ke. Larger distance, low data rate. Why larger distance, low data rate? Yes, sir. Larger distance, low data rate. Why? Because in this there is no maximum modulation नहीं होगी। हाँ, नहीं मिलेगा, मिनिमम मॉड्यूलेशन मिलेगा, BPS के मिलेगा, राइट, इसलिए। यस सर। ओके, सो 3 किलोमीटर वाले को क्या मिलेगा? BPS के। और 2 किलोमीटर वाले को QPS के। एंड 1 किलोमीटर वाले को 8 PS के। 8 PS के, या जितना हायर हो, 64 हो, 128 हो, तो इसलिए यदि आप बेस स्टेशन के नजदीक होते हैं तो डाटा रेट आपको क्या मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है। यस, और यदि आप धीरे धीरे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाते हैं तो आपकी डाटा रेट कम होती जाती है, क्योंकि मॉड्यूलेशन स्कीम लेसर एकोमोडेट होने लगता है। राइट, क्लियर? ओके, चरित्र अनम्यूट करो। यस सर। क्लियर हो गया बेटा, जितनी बार याद रहेगा। यस सर। So these are the practical things, how the different modulation scheme can be transmitted by the base station to your mobile। और ये different modulation scheme एक base station ही है, लेकिन different modulation scheme यूजर को देखते हुए लगाता है, इसलिए इसको बोलते हैं adaptive modulation encoding, AMC कोडिंग, राइट? AMC, adaptive modulation encoding scheme। समझ में आया? यस सर। सर एक चीज और कहनी है सर मुझे। हाँ बोलो बेटा। सर आप जैसे सर जो पढ़ा रहे हैं तो सर इसका एक बार कोई मतलब ऐसा रिवाइज करने के लिए कोई वीडियो सोर्स होता है? हाँ, मैंने अभी नहीं, देखो हम लोग मतलब अगर उससे देख लेंगे तो और भी सर क्लियर रहेगा। अगर कोई यूट्यूब का चैनल हो या ऐसा कुछ हो जो हम एक मिनट, मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ सब मैं बताऊंगा, अभी इंटरेस्ट डेवलप कर रहा हूँ, सो दैट यू हैव अभी सब चीजें मैं अभी अपने पैड पे लिखूंगा, आपको दिखेगा। हाँ, अभी बोलोगे प्रैक्टिकली कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये सब चीजें रिसर्च से आता है, राइट? जब आप 10 साल पढ़ेंगे, आप कभी भी किसी इंटरनेट पे फोकस करेंगे, किसी भी बुक को फॉलो कर नहीं मिलेगा। जो आप पढ़ चुके हैं ना, और ये सब चीजें वही वो दिखेंगी आपको। अलग चीजें जो प्रैक्टिकल चीजें होती है वो प्रैक्टिकल करने से आती है।
तो मैंने भी 10 साल रिसर्च किया है एंड मैंने ऑलरेडी आई टोल्ड आई एम मोस्ट पॉपुलर ऑथर इन 5G कम्युनिकेशन एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। आई हैव गॉन थ्रू माय प्रोफाइल आई थिंक, राइट? तो हाँ, तो मैं कहने का मतलब है कि अब ये हर प्रैक्टिकल का जो कंडीशन है ना, जैसे मैं अभी सिमुलेशंस मॉडल सिखाऊंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ये सब चीजें नहीं मिलेगी आपको, राइट? बट यस, हम उसी को बढ़ा रहे हैं जो बेसिक आपने पढ़ा होगा, ASK, FSK, QPSK, उसी को बेसिक को पढ़ाएंगे और फिर हम प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। अंडरस्टूड चरित? यस सर। तो सर रिवाइज करने के लिए सर बता दीजिए, मतलब जैसे आपने ये पढ़ा दिया, फिर हम एक बार मतलब थोड़ा 10-15 मिनट के लिए अगर देखें तो सर वो कैसे करें? वो अभी नेक्स्ट क्लास से आपको सब कुछ मैं अभी क्या करूंगा, अभी तो आपको करने के लिए बोल रहा हूँ, सब कुछ मैं पहले पढ़ाऊंगा और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। यस सर। अभी हम सब वीडियो लेक्चर जो मेरा ये बोर्ड है उसमें मैं बनाऊंगा, रिकॉर्ड करूंगा एंड सेंड टू यू। और एट द सेम टाइम मैंने अभी लैपटॉप लिया है जिसपे आप मैं लिख सकता हूँ, तो लिख के फिर मैं आपको भेजूंगा आपको चैनल पे, राइट? और मैं अपना चैनल का लिंक दे दूंगा। ये वीडियो सारा रिकॉर्ड हो रहा है, सो वंस अगेन यू कैन गो थ्रू। कहीं पे कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। Hopefully, this class provides you some basic concept about baseband transmission and band pass transmission. कभी किसी से पूछ दोगे ना बड़े बड़े बंदों से कि वायर्ड में कौन सा कम्युनिकेशन होता है, क्यों होता है, वायरलेस में कौन सा कम्युनिकेशन करते हैं, क्यों करते हैं? नो, हम सिर्फ मोबाइल यूज करते हैं, एवरी वन यू आर यूजिंग, बट हमने कभी सोचा नहीं कि कौन सा मॉड्यूलेशन कैसे यूज करता है। प्रैक्टिकली आप क्वेश्चन पूछते जाएं मेरे से, मुझे बहुत अच्छा लगेगा टू रिप्लाई ऑल योर क्वेश्चंस एंड मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। सो होपफुली इस क्लास में आपको दो चीजें समझ में आ गई। मैं अटेंडेंस लेता हूं और फिर हाँ, एक याद रखिए, दिस इज रियली बैड बिकॉज यू ऑल आर इन एमटेक स्टूडेंट्स। अभी 10 बजे क्लास है तो आपको 10 बजे ही तक 10 नहीं 9:55 में ही एंट्री कर देना है बेटा, है ना? एक मिनट में अटेंडेंस ले रहा हूं। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? मैं लीव करूं? सर एक चीज पूछनी है सर मुझे। सर ये LMS वाला सिस्टम क्या है? आप ये जो मतलब yes. आपको आपका सारे आपका जब अभी वो मिल जाएगा, करने का मतलब रोल नंबर मिल जाएगा, तो हमारे पास गूगल मॉड्यूल्स है। मॉड्यूल्स में LMS सिस्टम पे दो चीजें हैं, एक तो अटेंडेंस है, बट एज फार एज द एमटेक गाई अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हमारा चैनल फॉलो करें और जो हम असाइनमेंट देंगे वो आपको करना पड़ेगा, राइट? LMS system है, learning management system है, that is open source, where we can take the attendance, upload the grade sheet, upload the assignment, upload the videos, but videos वहाँ पे लिमिट है डेटा का, हम डायरेक्टली अपने YouTube चैनल पे ही डालेंगे, right? सर वो कब वो जो रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी वो सर इंस्टीट्यूट की आईडी होगी? हाँ, ये सारे बच्चों को मिल चुकी है, तुम्हें नहीं मिली है, तो आज HOD को लिखो, आपको मिल सर मैंने मेल कर दिया था सर। हाँ, तो मिल जाएगा, आजकल में मिल जाएगा, ठीक है? थैंक यू। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।